Namaskar and warm welcome from Executive team. Today we're going to start our next session of current affairs which is from 16th to 23rd September. ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट है. आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन दैट रॉजर फेडरर रिटायर्स. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स सेक्शन से मैं आपको बोल रहा हूँ, पिछले करंट अफेयर में भी कहा था कि क्वेश्चंस बनते हैं. तो not directly, no one will ask you in UPSC ki who retires like that of a thing, but indirectly there could be a question on tennis. There could be a question that who recently a tennis legend or a kind of a sportsman retire on the age of something like that. Okay. Secondly, from GS section 2 art and culture, we're gonna study about world's largest museum of Harappan culture in Rakhigari. If you have read art and culture on ancient India, you must know about this Rakhigari site. Okay, this is a very important site in your UPSC history also. Okay, after that we're gonna study from science and tech GS paper 3 section. UAE to launch its first lunar rover in November. Okay, this is from science and tech, and science and tech is another very important from where direct questions may come in your UPSC prelims. Then we're gonna study about an important current affair, about an important news. It is FSSAI releases draft notification on Indian nutrition rating. Okay, and the last current affair which we gonna study is from GS paper 3 from science and tech again, the virtual autopsy, what it is and why it is important. Because recently our one of the best comedian in India, late Raju Srivastav's post-mortem was done by this method. So this is a new technique. Uske advantages and its disadvantage we're gonna study about it. So let's start our today's session without wasting any time. So our very first topic, Roger Federer retires. Now यहाँ पर why this current affair we are reading, why this is you're gonna know about it क्योंकि कुछ perks हैं इनके. Let's find out. So Roger Federer, one of the greatest tennis player of all time, okay, announces retirement from competitive tennis. This is again important. Why this is important? Let's find out. So about him, let's know something about Mr. Roger Federer. So Roger Federer is a Swiss professional tennis player. कहाँ से है ये? तो ये स्विट्जरलैंड से है, स्विस. ओके, he was ranked world number 1 by Association of Tennis Professionals ATP. ATP आपने कई बार सुना होगा. For 310 weeks, okay, including a record 237 consecutive weeks. He has won 103 ATP single titles, the second most of all time, including 20 Grand Slam singles. Grand Slam, let me tell you about Grand Slam. Grand Slam जिन लोगों को नहीं पता है, तो 4 तरीके के Grand Slam होते हैं, ठीक है. फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, विंबलडन, विंबलडन जो कि आपके यूके में खेला जाता है, और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है. ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो हर साल होते हैं. ओके, मूविंग ऑन. सो अ रिकॉर्ड 8 मेंस सिंगल्स विंबलडन टाइटल्स. विंबलडन इज अनदर ग्रैंड स्लैम. ओके, मैंने आपको 4 में से जो बताया उनमें से जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये विंबलडन. An open era record tying 5 men's single in US Open titles. US Open another जो मैंने ग्रैंड स्लैम बताया है, जो अमेरिका में खेला जाता है, जो टर्फ में खेला जाता है. देखिए ये इन एक चीज और खासियत मैं आपको बता दूं, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन टर्फ में खेला जाता है ना, और विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, मतलब घास की सतह रहती है. फ्रेंच ओपन में क्ले की रहती है, मिट्टी की. यूएस और ऑस्ट्रेलिया ओपन में टर्फ रहता है, ठीक है. मूविंग ऑन. एंड अ रिकॉर्ड 6 ईयर एंड चैंपियनशिप्स. आपको इसमें जो मेजॉरिटी ध्यान देने वाली बातें हैं वो है ये 4 ग्रैंड स्लैम्स, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये चारों का टर्फ. और ये सबसे ज्यादा इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो कौन सा है? तो वो विंबलडन है. ओके, ये विंबलडन लिख देता हूं मैं, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है बट स्टिल, ठीक है. Let's move ahead. He has nominated for the Sportsmanship Award for a record of 13 times and has won ATP fans favorite for 17 consecutive years. 17 साल तक वो लोगों के फेवरेट रहे हैं. Okay. He holds the record of being the only individual to win the BBC Overseas Sports Personality of Year Award 4 times. He is also known for becoming the oldest ever world number 1 at the age of 36. हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 अगेन नोवेक जोकोविक बने हैं. यहाँ पर नीचे हम पढ़ेंगे खेल इनके बारे में. एंड इनके बाद जब ये वर्ल्ड नंबर 1 से हटे थे तो राफेल नडाल बने थे.
इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हैज प्लेड एन एरा वेयर डोमिनेटेड मेंस टेनिस अलोंग विद राफेल नडाल। ये एक स्पेनिश प्लेयर है, ठीक है, ही इज फ्रॉम स्पेन। एंड नोवेक जोकोविक, ये भी बहुत पॉपुलर नाम है टेनिस जगत में। कहा जाता है हमारे बॉलीवुड के जो महासितारे हैं अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन जी, उनके फेवरेट प्लेयर हैं। तो नोवेक जोकोविक, इनके एरा में राफेल नडाल और इनके एरा, इनकी बहुत ही अच्छे 3 प्लेयर्स हैं, इनका नाम बहुत चलता है। सिर्फ अभी इनमें से रॉजर फेडरर बाहर हुए हैं, मतलब रिटायरमेंट लिया है। मूविंग ऑन, एज द बिग थ्री, यस एज द बिग थ्री, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये 3 लोगों का बहुत एक दूसरे से क्लैश रहता है। जब भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में फेमस है, वैसे इन तीनों में से किसी भी 2 लोगों का मैच होता तो वो मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता। जोकोविक जो है वो पोर्तुगीज से, कलेक्टिवली कंसिडर्ड बाय सम टू बी द 3 मोस्ट सक्सेसफुल मेल टेनिस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया। Our next topic, which is from Art and Culture section, world's largest museum of Harappan culture. The world's largest museum of Harappan culture is currently being set in राखीगढ़ी, हरियाणा, ठीक है। अब आपको इतना पता चली गया कि राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, तो उसको जल्दी से मैप पे मार्क कीजिए। Let's move ahead. So, about the museum. So, it would showcase some 5,000 years old artifacts belonging to the Indus Valley civilization. आपने आपके ancient history में, ancient India में Indus Valley civilization obviously पढ़ा होगा। उसमें जितनी भी हड़प्पन sites है, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, आपका और कोई सराखीगढ़ी एक साइट है, ठीक है, तो इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो उसी में से जो राखीगढ़ी है, वहां पर म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हर चीज या अधिकांश चीज जो एक्सकवेट हुई हैं उनको रखा गया है। इट वुड गिव रिकॉग्नाइजेशन टू राखी एट द इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल्स and increase job opportunities for local communities. For the first time, a kids zone has been constructed in a museum in Haryana so that children can also be aware of their history in sports. Okay. लाइक हिस्ट्री इन स्पोर्ट्स तो नहीं आएगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, आई एम सो सॉरी। चिल्ड्रंस को अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए इन फील्ड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर and what kind of people at that time. This world class museum would display photographs depicting Rakhigiri's history. Okay, राखीगढ़ी में किस तरीके की सिटी थी एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरीके के फोटोग्राफ्स, और जब एक्सकावेट किया गया था तो वो फोटोग्राफ्स, इस तरीके की पेंटिंग, फोटोग्राफ्स वगैरह ये रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओपन एयर थिएटर, gallery, library has also been constructed which will give information about history to the visitors, especially to younger जनरेशन। जैसे कि दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री जी के लिए, जितने प्रधानमंत्री आज तक बने हैं उनके लिए काइंड ऑफ अ म्यूजियम बना है, जहाँ पर ओपन एयर थिएटर्स हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज है। सेम उस काइंड का, नॉट एग्जैक्टली उस स्तर पर, थोड़ा उससे कम इस म्यूजियम को बनाया गया। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? तो विद दिस डेवलपमेंट, ऑन वन हैंड टूरिज्म विल इंक्रीज एंड with the arrival of tourists here, employment opportunities will also be created for the youth of the village. ठीक है, मेन चीज एम्प्लॉयमेंट को काफी जोर दिया जा रहा है। तो अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है कि ये म्यूजियम के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों बनाया गया है, तो उस एडवांटेजेस में आप एक तो ये लिख सकते हैं कि हिस्ट्री को जानने को और मिलेगा, वहाँ के लोगों को इंटरनेशनली और इवन देश के लोगों को, एंड सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और वहाँ पर पैसा भी आएगा, लोग आएंगे, खर्चा करेंगे, होटल्स में रहेंगे, टैक्स भी जनरेट होगा, टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, एंड इस तरीके की चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट। सो द प्रेजेंस ऑफ शेल बैंगल्स इन द साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रेड लिंक्स टू फार वे प्लेसेस सच एज अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात एंड राजस्थान। वेरी नाइस, ये चीज आप पढ़ेंगे in your history. Clins used to make jewelry from stones or metals have been found in large numbers. Okay, jewelry trade is among the most prominent in this site. People in this civilization are known to melt precious metals like copper, carnelian, agate and gold to make garlands of beads. ठीक है, मेन चीज इसमें जिस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आई एम श्योर कि ये चीजें तो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस करंट अफेयर में है वो ये है एडवांटेजेस। ओके, दे कैन आस्क यू एडवांटेजेस ऑफ द न्यू थिंग्स व्हिच आर डेवलपिंग इन आवर कंट्री, है ना, किसी भी चीज में, लेकिन उनमें से एक ये है, तो इसके एडवांटेजेस आप जरूर एक बार और पढ़िएगा। नाउ
Next section, okay, which is from GS paper 3 science and tech, US moon mission. ठीक है, the UAE is expected to launch the Rashid rover in November this year. Okay, this year मैं आपको बता दूं, this year में कंफ्यूज मत होइएगा, this is 2022. okay, 23 अभी हाल फिलहाल चल रहा है, लेकिन this year इसमें 2022 है. ठीक है, मैं मेंशन करना चाहता था शुरुआत में इस पीपीटी में लिखना, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं. और एक चीज मैं फिर से कहूंगा कि ये जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं ये 2022 के हैं. हम डाल इसको भले ही अभी फेब मंथ में रहे हैं, लेकिन ये 2022 के करंट अफेयर्स हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा. ओके, अबोर्ड अ फैल्कन 9 SpaceX रॉकेट. ओके, so let's get brief into it. What it is, let's know. So about the lunar rover. The rover would be named Rashid after Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, one of the original founding rulers of UAE. Remember this name, very important. Okay, it's not only for this current affairs, for your general knowledge also. Remember this name. Its destination, the Lacus Somniorum, the lake of dreams, situated close to lunar equator. It will be landed on the moon through the Hakuto R lander, engineered by Japanese lunar exploration company Space. That's why its name is Japanese kind. If successful, the UAE and Japan will rank amongst the US, Russia and China as being only countries to land a spacecraft on the lunar surface. हमने भी कोशिश करी थी चंद्रयान के दौरान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो पार्ट होते हैं इसमें. ठीक है, जब इस तरीके के रोवर्स जाते हैं, एक पार्ट तो लैंड करता है जिसे रोवर बोला जाता है. ठीक है, और एक पार्ट इसके आउटर में रिवॉल्व करता रहता है. तो इंडिया ने जब भेजा था चंद्रयान में, तो ये वाली चीज तो अपनी जगह सेट हो गई थी, लेकिन रोवर क्रैश हो गया था. ठीक है, मिशन मंगल एक मूवी आई थी, उसमें ये चीज थोड़े हद तक कुछ बताई गई है आपको, आप देख सकते हैं. सो पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. देखिए, कोई ऐसी मजाक में या अपना नाम बढ़ाने के लिए तो नहीं भेजते, हाँ, लेकिन ये कारण जरूर होता है, लेकिन बताने के लिए या फिर वहां किस पर्पस से गया है. तो द राशिद रोवर विल स्टडी द लूनर सरफेस मोबिलिटी on the surface of moon and how different surfaces interact with the particles on the moon. ठीक है, it would carry 2 high resolution cameras, a microscopic camera, a thermal imagery camera, a probe and other devices to study the properties of lunar soil, petrography and geology of the moon, dust movement, surface plasma conditions and the moon's photoelectron sheet. Okay, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं डेटा और कंसेप्चुअल क्लियरिटी दोनों पे फोकस करता हूँ. ठीक है, तो आप जरूर इन दोनों को दिमाग में हमेशा रखिएगा कि डेटा के अनुसार भी पढ़ना है और कंसेप्चुअल स्टडी भी होनी चाहिए आपकी. ये दोनों है तो यूपीएससी आसान है, इन दोनों में से एक भी है तो यूपीएससी मुश्किल है, और अगर दोनों ही नहीं है तो भूल ही जाओ. Moving on. So, our next current affair. Draft nutrition rating. ठीक है, the FSSAI has recently issued a draft notification on Indian nutrition rating modeled on the Health Star rating system. मतलब कि ये मैं आपको इसके एडवांटेज अभी बता देता हूँ, इसके बारे में पढ़ेंगे तो सही, लेकिन हमारी कंट्री में आज भी ये चीज सभी को पता है कि एजुकेशन काफी पीछे है, नीचे है ना, काफी अभी भी काफी लोग पढ़े लिखे नहीं है. आप अगर जाएंगे गांव में, विलेजेस में, तो पीपल आर स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट बट लेस एजुकेटेड. ओके, तो जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो सिर्फ मैं आपको मेरा बता रहा हूँ, इवन इफ यू गूगल, इफ यू टेक इट योर ओन, खुद का एक्सपीरियंस देखिए. आप में से कितने लोग सामान जब खरीदते हैं तो उसके कंटेंट्स पढ़ते हैं कि इसमें भैया शुगर कितनी है, इसमें कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है. हाउ मेनी ऑफ यू रीड while purchasing anything, whether it's a cold drink or a chips or anything. कितने आप में से लोग कंटेंट्स देखते हैं? नहीं ना. तो जब आप पढ़े लिखे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य के कलेक्टर्स हैं, हाल फिलहाल में अभी तो आप नहीं देखते, और कुछ देखते हो तो वेरी गुड, देखना चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं देखते. तो गांव के लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे एक्सपेक्ट तो दूर की बात है, आप सोच सकते हो कि वो देखेंगे.
तो उनको क्या पता रहेगा कि किसी कौन सी चीज उनके अनुसार है। अब मान लीजिए गांव का कोई व्यक्ति है जिसे शुगर है, उसे शुगर अभी अभी डायग्नोस हुई है, एंड वो जाके कोई सी चीज खरीद लेता है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बहुत ज्यादा है। वो पोहा खरीदने चला गया, पोहा में बहुत शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स है, जिसकी वजह से उसकी शुगर बढ़ सकती है, बट उसको नॉलेज नहीं है इस चीज का। और चलिए ये भी हटा दीजिए, कंटेंट्स भी हटा दीजिए, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, chocolates, any of the fast food is injurious to health. We all know that, but many a times we ignore, है ना। सो अगर हम इग्नोर करते हैं तो जो गांव का व्यक्ति है, या फिर गांव का छोड़िए, जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक यूथ गांव का जो नया नया फिल्मों में या लोगों को देख के कोल्ड ड्रिंक देख रहा है, यार ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ये चिप्स खा रहा है, तो उसको ये लगता है कि यार ये लोग करते हैं तो ये अच्छी चीज होगी, है ना। मोस्ट ऑफ अस डू सम काइंड ऑफ बैड थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाइल वाचिंग समवन एल्स, यार ये इसका स्वैग है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट, which is totally wrong, and same thing happens, and इस वजह से now the topic comes कि FSSAI ने क्या करा कि कोई भी आप मान लीजिए ये चॉकलेट है, ठीक है, रैपर है उसका, तो उसके ऊपर ऐसी रेटिंग रहेगी कि कितना अच्छा है। 5 स्टार मतलब कि बहुत अच्छा, लेकिन वहीं अगर 4 स्टार है तो उससे कम अच्छा, 3 स्टार है तो और भी अच्छा नहीं कंसिडर किया जाएगा, 2 स्टार है तो बिल्कुल ही नहीं, और 1 स्टार है तो छोड़ो। सो इसके एडवांटेज क्या होंगे, कोई एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी ये देख लेगा कि इसकी स्टार के अनुसार मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और वो हर प्रोडक्ट पे होगा, हर खाने पीने की चीजों पे होगा, ठीक है, which is a very very nice initiative. Now let's know something about it. So the draft and notification इसका क्या आया है, तो the draft notification issued makes changes to the safety and standards labeling and display regulations 2020. Okay, the draft notification issued for the front of pack labeling would be known as Indian Nutrition Rating, INR. Very important, very 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 important, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, front pack labeling known as Indian Nutrition Rating, ठीक है। This draft notification caters to the front of pack labeling to discourage consumers from buying packed food high in sugar, salt and fat, as I told you before, कि कई बार हम खरीद लेते हैं, कई बार आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज हेल्दी बताते हैं, बट एक्चुअली वो होती नहीं है ना। आपको कोई चीज बोलेंगे दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड आप जब उसके कंटेंट देखते हैं तो यू विल बी शॉक कि यार इसमें तो ऐसा है, राइट। आई विल नॉट गो डीप इनटू इट कि आप बोलेंगे अगर ऐसा है तो व्हाई गवर्नमेंट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। वो नीचे बहुत बारीक बारीक अक्षरों में लिख देते हैं कि देयर आर सम मटेरियल, देयर आर समथिंग, जैसे कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है तो उसमें नीचे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा आता है कि नॉट एक्चुअली कंटेन सॉल्ट इन इट, राइट। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट, अधिकांश 99% ऑफ प्रोडक्ट्स में इसी तरीके की चालाकी होती है। अब कई सारी चीजों में आपने देखा होगा दाने दाने में केसर का दम, सो डू यू थिंक 5 रुपए की कोई खराब चीज में आपको केसर मिलेगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स नो समथिंग अबाउट इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग। रिक्वायर्स पैकेज फूड टू डिस्प्ले द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ INR by assigning a rating from 1 to star least healthy to 5 star healthiest, as I explained you earlier. Okay, the INR is to be calculated on the basis of contribution of energy, saturated fat, total sugar, sodium and positive nutrients per 100 gram of solid food or 100 ml of liquid food. The star assigned to a product shall be displayed close in proximity to the name or a brand name of the product on the front pack, says the draft notification. देखिए ये कितनी अच्छे पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि FSSAI भी जानती है ये चीज कि कंपनीज बड़ी चालाक है। जब वो एडवर्टीजमेंट में कुछ भी बोलकर नीचे लिख देते हैं कुछ भी, तो हमारे इस नोटिफिकेशन के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमने बोला आप रेटिंग दो, तो इतना बड़ा पैकेट है उसमें वो रेटिंग सिर्फ यहाँ दे रही है, इतना सा जो दिख रहे मेरी। तो अब इन्होंने क्या बोला कि ये आपका ब्रांड है, मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पर रेटिंग होनी चाहिए, या यहाँ पर क्लोज टू एनीवेयर दिस, यहाँ रेटिंग होनी चाहिए कि साफ सामने दिखे आपके ब्रांड नेम के वहां पर। वेरी नाइस थिंग। The system will be similar to the one that is being used by the Bureau of Energy Efficiency for assessing the energy efficiency in electrical devices. Okay, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में रेटिंग दी जाती है ना सेफ्टी के लिए, कि कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है, जैसे टाटा की गाड़ियों को 5 स्टार, महिंद्रा की गाड़ियों को 5 स्टार, तो उसी प्रकार से, ठीक है। नाउ एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स, किन किन प्रोडक्ट्स पे ये चीज नहीं होगी, तो फूड सच एज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वे, बटर ऑयल, घी, वेजिटेबल ऑयल,
fat, fresh, frozen fruits, vegetable, fresh and frozen meat, egg, fish, flour, sweeteners will not have to display स्टार रेटिंग्स। ओके, इन चीजों को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है स्टार रेटिंग। ओके, आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों, तो खुद सोचिए जरा एक चीज। आप मिल्क को कोल्ड ड्रिंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ये हेल्दी होगा कि कोल्ड ड्रिंक हेल्दी होगी? मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, घी, इसको आप देखेंगे, इसको इसको आप क्या कंपेयर करेंगे चॉकलेट्स के साथ? वे प्रोटीन जो आता है, जो जब आप पनीर बनाते हैं तो जो पानी निकलता है उसको सुखा के जो बनता है उसको वे बोला जाता है, इसको आप कंपेयर करेंगे? इसमें आप रेटिंग चाहिए आपको, तो क्या रेटिंग दोगे? 5 के ऊपर कुछ दोगे? बटर ऑयल, घी, वेजिटेबल ऑयल, फैट, फ्रेश, फ्रोजन फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रेश एंड फ्रोजन मीट, एग, फिश, फ्लावर, स्वीटनेस। आप खुद सोचिए, दिस आर नॉट meant to be rated. These are already healthy, just a waste of money and sources if we write on it. Okay, now moving on. Carbonated beverages without any energy or sugar will also not be eligible for declaring the rating according to the notification. Carbonated beverages without any energy or sugar, इसमें आपके कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं दे आर ऑल्सो इक्वली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नो नो कोल्ड ड्रिंक और नो एनर्जी ड्रिंक विच विल गिव यू wings or which will give you energy to run like a rocket. It's just not good for your health. It contains lots and lot of sugar, which is not good for your health, which is not good for your kidney and your under your body parts. बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है? जो दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट में उस पर मत जाइए। मूविंग ऑन नाउ, प्रोसीजर फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए क्या आदेश है? Although not mandatory, the notification stated that food business may add interpretive information next to star rating logo giving details of energy, sugar, saturated fat and salt content. Okay, this is important. To generate star rating logo for products, food businesses have to submit nutritional profiles of the product concerned on FSSI's FOSCO या फिर FOSCO's फूड सेफ्टी कंपनी सिस्टम। तो ये आपका मुझे ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर है, जो कि मेंस एंड प्री दोनों में से किसी एक में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्टली में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको फिर से जरूर सुनिएगा। मूविंग ऑन, एक चीज और इसमें है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इट इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, FSS एक्ट, comes under the aegis of Ministry of Health and Family Welfare, is responsible for providing license to the food businesses, developing safe food practices, testing capacity building, etc. The act aims to establish a single reference point for the all matters relating food safety and standards by moving from multi-level, multi-departmental control to single line of command. ओके, ये चीज आप एक बार खुद स्वयं पढ़ लीजिएगा, जस्ट फॉर अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन, बट जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मूविंग ऑन, so our next current affair, which is the last current affair of today's current affairs video, so it is from GS paper 3 science and tech, virtual autopsy. Comedian Raju Srivastava post-mortem was conducted using a novel technique called virtual autopsy. As you can see in this image, ये क्या है? बिना, चलिए आपको समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट बिना काटा पीटे, बिना किसी बॉडी को काटे, ऊपर से स्कैन करके उस बॉडी का पोस्टमार्टम करना एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको वर्चुअल ऑटोप्सी कहा गया है। ओके, इसको और ब्रीफ में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, लेट्स नो। So, what is virtual autopsy? Autopsy is a word combining virtual and autopsy for the purpose of autopsy and to find cause of death. Okay, it is a new technique of postmortem that does not include dissections, मतलब वही काटा पीटी नहीं। The postmortem is done using high-tech digital X-rays and CT scans. In a virtual autopsy, doctors use radiation to examine the innards to reach a conclusion about the cause of death. A CT or MRI machine could be used in the same way that they are used to scan a living human body. कभी ना कभी आप या फिर खुद के या आपके किसी परिचित की वजह से हॉस्पिटल में कभी ना कभी जाना हुआ होगा, कभी ना कभी एक्सरे मशीन देखना हुआ होगा, MRI या फिर CT स्कैन मशीन देखना हुआ होगा।
बस उन्हीं के जरिए उसको और एडवांस टेक्निक के जरिए बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। ओके, डिफरेंट फ्रॉम जनरल ऑटोप्सी। जनरल में क्या होता है, सीधी सी बात है, एक बॉडी है, ठीक है, उसको लेटा दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर और पता किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है एंड उस कैसे मृत्यु हुई और उसका घोषणा डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। सो let's read about it. Let's read it. A general autopsy is a highly specialized surgical procedure that consists of through examination of a corpse to determine the cause and manner of death and to evaluate any disease or injury that may be present. In a virtual autopsy, doctors use radiation to examine the inerts to reach a conclusion about the cause of death. Now, what are the advantages of it? This is important. The traditional post-mortem offers makes members of dead person's family uncomfortable. सीधी सी बात है, किसी घर पे मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की, उसको आप काट रहे हो, थोड़ा उसकी बॉडी को जब आप हैंड ओवर करोगे तो फैमिली को थोड़ा बहुत तो इशू या फिर कहें कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा ही ना। Vitopsy can be employed as an alternative to standard autopsies for broad and systemic examination of the whole body as it is less time consuming. सीधी सी बात है, जब आप जो पुराने मेथड से अगर आप पोस्टमार्टम करते तो उसका डिसेक्शन करना, प्रॉपरली कॉज ऑफ डेथ ढूंढना, उसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह सब चीज़ों को देखना करना, क्या कारण है, सब खैर डॉक्टर्स आर वेरी एक्सपर्ट, but it is on the other hand time consuming also. Okay, it creates digital and permanent records of the body, making it easier for pathologists and clinicians to communicate with each other. Obviously मशीन में आया, मशीन में देखा, उसको कंप्यूटर में डाला और सामने वाले को फैक्स मेल जो करना हो कर दिया, वो दूसरी जगह पहुंचा, उन्होंने तुरंत हाथों हाथ देख लिया। लेकिन यहाँ पर पुराने टाइम में जैसे हम करते आ रहे हैं, उसमें डॉक्टर रिपोर्ट बनाएगा, फिर वो रिपोर्ट दूसरी जगह जाएगी, उसमें टाइम लगता है। So again, it is time consuming. Findings may be autopsy can be documented in the form of X-rays films, which can be used as evidence in court also. Okay. It can provide to be cheaper. Conventional autopsies can, in some cases, with fewer resources needed to be simpler to perform. देखिए ये पॉइंट में ना एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप आगे मुझे कोट करेंगे। इट कैन प्रोवाइड टू बी चीपर, ओके, देन कन्वेंशनल ऑटोप्सीज, वेरी ओके, इन सम केसेस, ओके, इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केसेस, इन सम केसेस, with fewer resources needed and simpler to perform. Okay, it is capable of detecting even minute fractures like hairline or chip fractures in bones along bleeding, which are signs of antemotum injuries, injuries received by body before death, not often possible in the traditional method of autopsy. This is the advantage कि easily पता चल सकता है कि भैया इसको मारा गया था क्या पहले, शो मतलब मृत्यु के पहले कुछ हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, which is very helpful to know the case whether it's a suicide or whether it's a murder or whether it's a natural death. Now, what are the disadvantages of it? This is also very important. So, the disadvantage of autopsy is that the lack of use of psychological senses of an anatomical pathologist like smell, texture and color due to lack of direction contact with the cadaver. Cadaver matlab dead body. It is a term used in medical. Okay, cadaver याद रखेंगे तो जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए वेरी नाइस, आई थिंक। इट इज एक्सपेंसिव एंड इंक्लूड हाई इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट। ओके, इट इज एक्सपेंसिव। लास्ट टाइम in advantages I told you it is cheaper in some cases, not in every cases. लाइक जैसे कि एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं या फिर कोई ऐसा केस आया जो पेचीदा हो, जिसमें काफी डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पोस्टमार्टम करना पड़ रहा हो, जिसमें और भी रिसोर्सेस का यूज हो रहा हो, तो वो ऑब्वियसली बात है ना, वो इस नई मेथड से थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इट वॉज चीपर इन सम केसेस बट नॉट चीपर इन एवरी केसेस। Okay, virtual autopsy needs skills and training to deduce from the
autopsy results. Lack of experience is a disadvantage here. It is also difficult to be used in underdeveloped countries where advanced technology is not prevalent. हर जगह ये चीज एकदम से नहीं जाएगी और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हर जगह पहुंचाना भी. Moving on, it is a lengthy procedure which includes CT scan, MRI with result may take 2-3 days to come, while traditional autopsy take less time. Okay. देखिए this is again let me tell you one thing, this is not with every case. Okay, lengthy procedure है कि CT scan MRI 2-3 दिन लग सकते हैं but in some emergency cases it can even give you good results in in less time. However, it does away with ethical disadvantages of the conventional autopsy as many cultures and traditions do not accept a mutilation of body for the sake of autopsy. What is the notable thing here? Currently, AIMS Delhi is the only institute doing virtual autopsy in Southeast Asia for past 2 years. ओके इसीलिए राजू श्रीवास्तव जी यहाँ पर एडमिट थे और उनका इस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ गया. ठीक है. So this was our today's current affair. I hope you liked it. I hope आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी. इसको दोबारा से देखिएगा, इसको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ so that they could also learn something new. UPSC है, competitive exam है, I know, but it doesn't mean you should not help each other. Okay, many of you have, I know, that thought that we should not help and otherwise it would create a competition between us. But let me tell you, you are going to be a civil servant which will always help others. So have that quality in you from now onwards. Okay, कि आप दूसरों की मदद करें, उन्हें वीडियो शेयर करें, उन्हें बताएं जुलाई मंथ से स्टार्ट हुआ है, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जिनको दिस इज नॉट ओनली फॉर यूपीएससी ना, जनरल नॉलेज भी आपको मिल रहा है, तो दिखाइए, सबको दिखाइए. अगेन मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लाइव है जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पर है. यू कैन चेक इट आउट. आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल address you, even I will address you if you want. Till then, all the very best for your exams. Prelims 2023 is near. खूब मेहनत करिए and best wishes from Exactice team. Thank you.